Hello student, today we are start the next topic. ठीक है, before we are starting the next topic, firstly we will introduce or we will discuss last lecture. तो हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन सा पार्ट देखा था, कौन कौन से टॉपिक्स देखे थे. हमने एब्रीवेशंस देखे थे एंड टाइप्स ऑफ लाइनिंग देखा था. अगर इसमें कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, देन आज हम लेटरिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, लेटरिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन ड्राइंग. इट शुड बी क्लीन, यूनिफॉर्म एंड रैपिड टू राइट. लेटरिंग क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे ड्राइंग में एंड क्लीन एंड रैपिडली राइट करना चाहिए. ठीक है, ऑल लेटर शुड बी कैपिटल एंड मस्ट हैव स्टैंडर्ड शेप एज शोन इन फिगर. टेबल जो दिया गया है, सॉरी एज शोन इन टेबल, देखिए साइज ऑफ लेटर्स दिए गए हैं एंड न्यूमेरिकल ऑफ फॉर ड्राइंग, पर्पस दिए गए हैं एंड साइज ऑफ लेटरिंग एंड नंबर इज मीन्स कौन कौन से पर्पस के लिए कौन कौन से साइज ऑफ लेटरिंग हमें करनी है वो दी गई है. ठीक है, तो फर्स्ट मेन पर्पस है हमारा मेन टाइटल एंड ड्राइंग नंबर. जब हम मेन टाइटल एंड ड्राइंग नंबर हमारा पर्पस है, ऑन दैट टाइम वी यूज़ 6 mm, 8 mm, 10 mm एंड 12 mm साइज ऑफ लेटरिंग. देन सेकेंड पर्पस है हमारा सब टाइटल्स एंड हेडिंग. जब हम सब टाइटल्स एंड हेडिंग हमारा पर्पस है, वर्क कर रहे हैं सब टाइटल्स और हेडिंग पर, मीन्स हमें सब टाइटल या फिर हेडिंग डालना हो तो हमें 3 mm, 4 mm, 5 mm एंड 6 mm का साइज का लेटरिंग हमें यूज़ करना है. ठीक है, देन नोट्स, शेड्यूल, मटेरियल्स एंड डायमेंशन. ऑन दैट टाइम वी यूज़ 2 mm, 3 mm, 4 mm एंड 5 mm साइज ऑफ लेटरिंग. ठीक है, दिस आर द साइज ऑफ लेटरिंग एंड नंबर्स फॉर ड्राइंग्स. ठीक है, ऑल डायमेंशन आर इन mm. ओके, then next is scales. Any scale is called as an engineer scale and is tools for measuring distances and transferring measurements at a fixed ratio of length. For the preparation of submission and working drawings, the following scales shall be used. Other scales for the preparation of different types of drawings are given in IS 962 to 1967. फर्स्ट हमें स्केल का प्रोपोर्शंस दिया गया है, रेशो दिया गया है 1:200, मीन्स 5 mm इज इक्वल्स टू 1 मीटर. ये स्केल हमें कब यूज़ करनी है, जब हम सबमिशन एंड वर्किंग ड्राइंग प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट रेशो इज 1:20, दैट इज 50 mm इज इक्वल्स टू 1 मीटर फॉर लार्ज स्केल ड्राइंग एंड 1:10, दैट इज 100 mm इज इक्वल्स टू 1 मीटर फॉर जनरल ड्राइंग के लिए हम यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट 1:5, that is 200 mm is equals to 1 meter for enlarged details. Then 1:2, that is 500 mm is equals to 1 meter and 1:1 for full size के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है, दिस आर द स्केल रेशो फॉर यूज डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क व्हेन वी आर ड्रॉ. ठीक है, सो carefully read and see. Then next is reading of available ammonia prints residential building. ठीक है, a teacher should be procure 4 to 5 different ammonia prints of residential buildings and explain the features and ask the student to read from the drawing.
Question should be asked like that. First question is that is what is the scale of drawing. हम कौन से टाइप की स्केल हमारे ड्राइंग में यूज़ कर रही है. देन नेक्स्ट वेयर इज इट इंडिकेट. थर्ड वन इज what are the different details given in the nameplate. Fourth one is what is the where is the north डायरेक्शन आपका कहाँ है. Then what is the significance of the north directions. Then read the construction notes. What information is given is in construction notes. Read the schedules of doors and windows. What information does it contain? Next one question is how many floors does the building have and how many rooms? What is the size of halls, kitchens, bedrooms, WC bath, etc. See the elevation. What main detail does it show? Read the section. Relate the section line on the plan with the section shown by going from one end of the section line to the other. Observing how section is drawn wall by wall, feather by feather. Note down how the walls continue up to the foundation or how the columns continue in. Sorry student for the technical issues. Next question is observe the dimensioning. Does the dimensioning shows the actual measurement or the scale down measurements. Observe all hidden line and center lines. Find out to what each of these refer. Observe the placement of titles and their lettering. Observe the layout of plan, elevation, section, foundation plan, block plan, side plan, etc. ठीक है. These are the questions ask. ठीक है. The student to read from drawing. Okay. Then next is composition of drawings required of submission working and details drawing. जब हम सबमिशन एंड वर्किंग एंड डिटेल ड्राइंग जब हमें सबमिशन वर्किंग एंड डिटेल ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है तो ऑन द टाइम कौन कौन से कंपोजिशन हमारे शीट में होने चाहिए. सबमिशन ड्राइंग आर प्रिपेयर्ड विद द स्केल 10 mm इज इक्वल्स टू 1 मीटर. मीन्स हमें 10 mm इज इक्वल्स टू 1 मीटर लेनी है. इस टाइप की स्केल हमें यूज करनी है. देन हैंस ऑल द रिक्वायर्ड व्यूज शॉल बी अरेंज और ऑन वन शीट कन्वेंशनली. फर्स्ट इज टाइटल बॉक्स block. It is the right hand bottom corner. This should contain name of drawing number. ये यहाँ पर शीट मैंने ड्रॉ की करके बताई है आपको कि शीट में कौन कौन से पोर्शन में कौन कौन सा पार्ट होना चाहिए हमारे बिल्डिंग का. ठीक है. टाइटल ब्लॉक मीन्स इट इज़ एन राइट हैंड बॉटम कॉर्नर. ये राइट हैंड हमारे हैंड के राइट हैंड के बॉटम कॉर्नर में होना चाहिए. नेम ऑफ ड्राइंग नंबर, डेट ऑफ प्रिपरेशंस, prepare by, check by scale, name of architect, etc. The typical title block as shown in figure. ठीक है. तो क्या क्या शो करना पड़ता है हमें हमारे शीट्स में एंड टाइटल ब्लॉक में तो वो दिया गया है. ठीक है. तो टाइटल ब्लॉक में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है. नेम ऑफ ड्राइंग नंबर मीन्स ड्राइंग का नंबर. देन नेक्स्ट डेट ऑफ प्रिपरेशंस. ठीक है. हमने कौन से डेट पे हमें हमारा प्लान बनाया है, प्रिपेयर किया है. देन प्रिपेयर बाय, कौन प्रिपेयर कर रहा है. देन चेक बाय, कौन चेक कर रहा है. देन नेम ऑफ आर्किटेक्ट, कौन से आर्किटेक्ट ने बनाया है ये डिज़ाइन, एक्सेट्रा. दिस टिपिकल टाइटल ब्लॉक आर शोन इन फिगर. ठीक है.
देन कंपोजिशन ऑफ सबमिशन ड्राइंग। सबमिशन ड्राइंग जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें 1:100 की स्केल यूज करनी पड़ती है, दैट इज 10 mm = 1 मीटर, ठीक है। तो इस टाइप की हमें सबमिशन ड्राइंग बनानी पड़ती है। देखिए, फर्स्ट इज प्लान, देन एलिवेशंस। फर्स्ट क्या आएगा हमारा प्लान, जो हम प्लान बना रहे हैं, देन उसके ऊपर एलिवेशन आएगा, देन उसका सेक्शन ए से हम कट कर रहे हैं तो ए का सेपरेट सेक्शन व्यू आएगा, देन सेक्शन, सॉरी स्टूडेंट फॉर द टेक्निकल इश्यूज, ठीक है, सेक्शन ए का, देन सेक्शन बी का। अगर हम प्लान में 2 सेक्शन पार्ट कर रहे हैं ए एंड बी, तो उसका डिफरेंट आएगा, ठीक है, सेक्शन प्लान, सेक्शन व्यू, सॉरी। देन लोकेशंस प्लान, हमारा लोकेशन प्लान, ठीक है, देन साइट प्लान, देन शेड्यूल ऑफ डोर्स, शेड्यूल ऑफ विंडोज, देन ब्लॉक प्लान एरिया स्टेटमेंट, देन कंस्ट्रक्शन नोट्स, जो हमारी कंस्ट्रक्शन नोट्स है वो, एंड देन टाइटल ब्लॉक्स, ठीक है। तो इस टाइप की हमारी शीट्स होती है पूरी, तो ये अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिफरेंशिएट बिटवीन लोड बेयरिंग एंड फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे लोड बेयरिंग एंड फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर का डिफरेंस, ठीक है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर मीन्स लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, sorry, load of structure is transfer to soil through portioning with the help of wall, means load bearing structure में जो हमारा soil ट्रांसफ़र होता है, लोड सॉइल थ्रू विद द हेल्प ऑफ वॉल, ठीक है। एंड जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर वर्क है उसमें लोड ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्रांसमिटेड थ्रू कॉलम, ठीक है। लोड बेयरिंग में जो हमारा लोड स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफर हो रहा है सॉइल थ्रू फोल्डिंग विद द हेल्प ऑफ वॉल के हेल्प से। देन फ्रेम स्ट्रक्चर में हमारा जो लोड ऑफ स्ट्रक्चर है वो ट्रांसमिट हो रहा है कॉलम से। देन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हम 2 या फिर 4 स्टोरी बिल्डिंग ही हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर we will be construct मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, मोर देन 15 स्टोरी बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हार्ड स्टार्टर अवेलेबल एट शैलो डेप्थ, ठीक है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हार्ड स्टार्टर जो रहता है हमारा शैलो डेप्थ तक रहता है अवेलेबल। देन फ्रेम स्ट्रक्चर में सुटेबल इन एनी टाइप ऑफ स्टार्टा एट एनी डेप्थ, मीन्स हम एनी टाइप का स्टार्टा हम यूज़ कर सकते हैं एनी टाइप ऑफ डेप्थ तक। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, दैट इज लेस फ्लोर एरिया अवेलेबल ड्यू टू थिक वॉल, लेस फ्लोर एरिया अवेलेबल रहता है थिक वॉल तक, ठीक है। एंड इन केस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर मोर फ्लोर एरिया ड्यू टू थिनर वॉल्स। देन नेक्स्ट पॉइंट लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर दैट इज अलाउड अप टू 4 स्टोरी, ठीक है, यहाँ पर हम 4 स्टोरी ही अलाउड कर सकते हैं। देन इन केस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर वी अलाउड मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल, ठीक है। देन स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग कंस्ट्रक्शन, ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर किस टाइप का है, स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग करता है, ठीक है। देन फ्रेम स्ट्रक्चर वर्क कैसा है हमारा, फास्ट है एंड रैपिडली कंस्ट्रक्ट कर रैपिडली हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देन इकोनॉमिकल अप टू 2 स्टोरी, 2 स्टोरी तक ही इसकी इकोनॉमिकल है। देन फ्रेम स्ट्रक्चर की इकोनॉमिकल फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू लोड बेयरिंग वॉल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इन फ्रेम स्ट्रक्चर दैट इज फ्लेक्सिबल ड्यू टू वॉल्स सर्विंग एज पार्टीशन ओनली, ठीक है।
दिस आर द डिफरेंशिएट बिटवीन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। एंड हमने आज क्या क्या देखा, फिर हमने लेटरिंग देखा। ठीक है, लेटरिंग्स के क्या इम्पोर्टेंट्स है, कौन से टाइप के पर्पस के लिए हम कौन से टाइप का लेटरिंग का साइज़ हम यूज़ कर रहे हैं, देन स्केल कौन कौन सी यूज़ करनी है, कौन कौन से ड्राइंग जब हम बना रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग के हिसाब से हमें कौन कौन सी स्केल यूज़ करनी है वो हमने देखी है। देन रीडिंग ऑफ अवेलेबल अमोनिया प्रिंट्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स देखा है, जब हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग की प्रिंट्स आउट निकालते हैं ऑन दैट टाइम कौन कौन से टाइप की रिक्वायरमेंट हमें नीडफुल है वो देखी है। देन कंपोजिशन ऑफ ड्राइंग्स रिक्वायर्ड ऑफ सबमिशन वर्किंग एंड डिटेल ड्राइंग्स ये देखा है हमने। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा था डिफरेंशिएट बिटवीन लोड बेरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट यूनिट एंड हो रहा है। ठीक है, कौन सा था हमारा फर्स्ट यूनिट, कन्वेंशंस एंड सिम्बॉल्स। ये पूरे यूनिट में हमने क्या क्या देखा है, कन्वेंशन एंड सिम्बॉल्स। ठीक है, ये हमारा यूनिट का टाइटल था। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ ये टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक दैट ड्राइंग के सिम्बॉल्स कौन कौन से मीन्स ड्रॉ द सिम्बॉल्स यूज इन सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, मीन्स सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम कौन कौन से टाइप के सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। देन इलेक्ट्रिकल फीचर्स के लिए कौन से करते हैं, देन स्टैंडर्ड फीचर्स के लिए कौन से करते हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं आपको। देन ड्रॉ कन्वेंशन फॉर द फॉलोइंग लाइन्स। ठीक है, आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन, पॉइंटर, एरो, स्केचेस, हिडन, विजिबल, सेक्शन, सेंटर एंड स्केच एनी 4 टाइप्स ऑफ लाइन। राइट द नेम्स ऑफ इंस्टॉलेशन सिंबल एंड गिवन बिलो, मीन्स आपको डिफरेंट टाइप को सिम्बॉल्स शो करके दिए जाएंगे एंड उसको आपको उसके आपको नाम बताने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ पूछे जा सकते हैं फॉर द 2 मार्क्स के लिए। तो बहुत ही इजी टॉपिक्स है, ये बेसिक है, तो अच्छे से समझ लिया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है।